ذویل فروز کی بحث مکمل ہو گئی۔ اب عصبات کا تذکرہ مصنف علیہ الرحمٰن نے شروع کیا۔ عصبات جمع ہے عصبہ کی، اور عصبہ باپ کی جانب سے جو قرابت دار ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ علم فرائض کی اصطلاح میں عصبہ میت کے وہ رشتہ دار جو ذوی الفروض سے بچا ہوا ترکہ حاصل کرتے ہیں، اور اگر ذوی الفروض نہ ہوں تو کل مال ترکے میں حاصل کرتے ہیں۔ تو عصبہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک عصبہ نسبیہ، نمبر دو عصبہ سببیہ۔ آج ہمارا سبق عصبہ نسبیہ کے حوالے سے ہے۔ عصبہ نسبیہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک عصبہ بنفسہ، نمبر دو عصبہ بغیرہ، اور نمبر تین عصبہ مع غیرہ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی، کہ عصبہ بنفسہ ہر وہ مرد ہے جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں کوئی مؤنث درمیان میں واسطہ نہ بنے، اس کو عصبہ بنفسہ کہتے ہیں۔ اور اس کی چار صنفیں ہیں، چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جزء المیت۔ عصبہ بنفسہ کی پہلی قسم کا نام ہے میت کی جز۔ نمبر دو میت کی اصل، نمبر تین میت کے باپ کی جز، نمبر چار میت کے دادا کی جز اوپر تک۔ یہ چار قسمیں ہیں، اور ان اقسام کے اندر مصنف نے الاقرب فالاقرب کا قانون بیان کیا۔ تو قرب درجہ کے لحاظ سے ترجیح ہوگی، جو میت کے زیادہ قریب ہوگا اس کو ترکہ ملے گا، تو زیادہ قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والے کو ترکہ نہیں ملے گا۔ مطلب یہ کہ ان چار قسموں میں سے میت کی جز، میت کی اصل، میت کے باپ کی جز، میت کے دادا کی جز، ان میں سب سے زیادہ حقدار میراث کا میت کی جز ہے، یعنی میت کے بیٹے یہ زیادہ قریب ہیں میت کے، لہذا بطور عصبہ ان کو ترکہ ملے گا۔ اور پھر اگر بیٹے نہ ہوں تو پوتوں کو ترکہ ملے گا بطور عصبہ، پوتے نہ ہوں تو پر پوتے نیچے تک مذکر اولاد کسی بھی درجے میں ہو اس کو ملے گی۔ تو یہاں قرب درجہ کے لحاظ سے بیٹے پوتوں سے مقدم، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملے گا۔ یہاں الاقرب فالاقرب کا قانون جاری کرتے ہوئے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملے گا، اور پوتے کے ہوتے ہوئے پر پوتے کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اگر میت کی جز یعنی بیٹے پوتے پر پوتے نیچے تک مذکر اولاد کسی بھی درجے میں موجود نہ ہو، ثم اصلہ، تو اس کے بعد میت کی اصل کو ترکہ بطور عصبہ ملے گا۔ یعنی میت کی اصل کیا ہے؟ میت کا باپ، دادا، پردادا، اوپر تک مذکر اصول۔ تو میت کے باپ کو بطور عصبہ ترکہ ملے گا جب میت کی مذکر اولاد نہ ہو، تو باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو بطور عصبہ نہیں ملے گا، اور اگر باپ نہیں ہے تو دادا کو ملے گا۔ دادا کی موجودگی میں
परदादा को नहीं मिलेगा। अगर मैयत की असल यानी बाप दादा परदादा ऊपर तक मौजूद नहीं है तो फिर मैयत के बाप की जुज़ यानी मैयत के भाइयों को तरका मिलेगा। और मैयत के भाइयों से मुराद सगा भाई जो बाप और माँ दोनों जानिब से मैयत का कराबतदार है वो, और अल्लाती भाई यानी बाप शरीक भाई को बतौर असबा मिलता है। अब यहाँ पर भाई सगा भी है अल्लाती भी है, इनमें से तरका बतौर असबा सगे भाई के होते हुए अल्लाती भाई को नहीं मिलता। क्यों कि कानून ये है वरासत का कि एक कराबत वाला मौजूद हो और दो कराबत वाला रिश्तेदार मौजूद हो, दर्जे में बराबर हैं, कुर्ब दर्जा में दोनों बराबर हैं, तो कराबत की जिहत का लिहाज करेंगे। जो दो कराबत वाला है उसको तरका मिलेगा, जो एक कराबत वाला है उसको दो कराबत वाले की मौजूदगी में नहीं मिलेगा। अब सगा भाई बाप की जानिब से भी कराबतदार और माँ की जानिब से भी कराबतदार, लिहाजा सगे भाई के होते हुए अल्लाती भाई को तरका बतौर असबा नहीं मिलेगा। सगा भाई ना हो तो अल्लाती भाई को तरका बतौर असबा मिलेगा। अब अगर अल्लाती भाई मौजूद नहीं, अब नीचे आएंगे सगे भतीजे को मिलेगा। सगा भतीजा मौजूद है तो अल्लाती भतीजा साकित हो जाएगा। अगर मैयत के भाई सगे या अल्लाती या इनकी मुज़क्कर औलाद नीचे तक किसी भी दर्जे में मौजूद ना हो तो फिर बतौर असबा ये तरका मैयत के चचा की तरफ मुंतकिल होगा। यहाँ पर ये याद रखिए जो माँ की जानिब से भाई है, माँ शरीक भाई या माँ शरीक भतीजा या उसकी नीचे तक मुज़क्कर औलाद, ये असबात में नहीं है, क्योंकि असबा मैयत के बाप की जानिब से जो कराबतदार होते हैं वो होते हैं, जबकि माँ की जानिब से जो कराबतदार हैं वो ज़विल अरहाम में शामिल हैं। असबा या ज़विल फरूज़ के होते हुए ज़विल अरहाम को तरका नहीं मिलता। जब सगे या लाती भाई या इनकी मुज़क्कर औलाद नीचे तक किसी भी दर्जे में मौजूद ना हो तो मैयत के चचा को तरका बतौर असबा मिलेगा। अब यहाँ पर भी सगे चचा की मौजूदगी में अल्लाती चचा को नहीं मिलेगा, क्योंकि सगा चचा बाप और माँ दोनों जानिब से कराबतदार है, तो दो कराबत वाले के होते हुए एक कराबत वाले को तरका नहीं मिलता। हाँ, सगा चचा ना हो तो अल्लाती चचा को तरका मिलेगा। और अगर सगा और अल्लाती चचा मौजूद नहीं और उनके मुज़क्कर औलाद नीचे तक किसी भी दर्जे में मौजूद है तो सगे चचा की औलाद अल्लाती चचा की और मुज़क्कर औलाद पर मुकद्दम होगी, क्योंकि वो दो कराबत वाले हैं और अल्लाती चचा की मुज़क्कर औलाद एक कराबत वाली है, तो दो कराबत वाला एक कराबत वाले पर मुकद्दम होगा। और अगर चचा सगा या अल्लाती या इनकी मुज़क्कर औलाद नीचे तक किसी भी दर्जे में ना हो तो मैयत के बाप का चचा सगा और अल्लाती और उनकी मुज़क्कर औलाद में भी यही कानून जारी होगा कि बाप के सगे चचा के होते हुए अल्लाती चचा जो बाप का है उसको तरका नहीं मिलेगा। अगर सगा चचा नहीं तो अल्लाती चचा को तरका मिलेगा। अगर दोनों चचा बाप के मौजूद नहीं तो फिर इनकी मुज़क्कर औलाद में सगे चचा की औलाद मुकद्दम और अल्लाती चचा की औलाद यहाँ पर साकित होगी। और अगर सगे चचा की औलाद ना हो बाप के तो बाप के अल्लाती चचा की औलाद को
मुज़क्कर औलाद को तरका मिलेगा। और अगर बाप के चचा की औलाद या बाप के चचा मौजूद नहीं तो फिर मैयत के दादा के चचा, सगे और अल्लाती और उनके मुज़क्कर औलाद में यही कानून जारी होगा। और इसके बाद असबा मा गैरिही का तज़किरा मुसन्निफ बयान करते हैं कि जो असबा बिगैरिही हैं वो औरतें हैं। असबा बिगैरिही हर वो मुअन्नस के जिसका फर्जी हिस्सा निसफ या सुलसान हो, उसके साथ उसका भाई मिल जाए तो वो असबा बन जाए। तो ये कुल 4 औरतें हैं। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 पोती परपोती नीचे तक मुअन्नस औलाद, नंबर 3 सगी बहन, नंबर 4 अल्लाती बहन। कि ये जब अकेली होती हैं तो इनको निसफ मिलता है, 2 या 2 से ज्यादा हो तो सुलसान मिलता है। जब इन 4 औरतों के साथ इनका भाई साथ मौजूद होता है तो ये असबा बन जाती हैं। तो इनको असबा बिगैरिही कहा जाता है। और आगे किताब के अंदर कानून बयान करते हैं कि हर वो औरत जिसका फर्जी हिस्सा न निसफ है न सुलसान है, बल्कि कोई भी फर्जी हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका भाई खुद असबा है, तो वो औरत अपने भाई के साथ मिलकर असबा नहीं बनेगी। जैसे कि फुफ्फी है, फुफ्फी का फर्जी हिस्सा बिल्कुल नहीं है, कुरान और सुन्नत में इसका हिस्सा मुकर्रर नहीं है, ना निसफ ना सुलसान ना कोई और हिस्सा। लेकिन फुफ्फी का भाई जो मैयत का चचा है वो असबा है। अब फुफ्फी और चचा सगे हूं या अल्लाती, फुफ्फी को किसी भी सूरत में ना फर्जी हिस्सा मिलता है ना बतौर असबा कुछ मिलेगा। सारा माल बतौर असबा मैयत के सगे या अल्लाती चचा को मिलेगा। इसके बाद तीसरी किस्म असबा नस्बिया की वो है असबा महा गैरिही या असबा माल गैर कहते हैं। इसकी तारीफ है कुल उनसा तसीरु असबतन मा उनसा उखरा। हर वो औरत जो दूसरी औरत की मायत में असबा हो जाए उसको कहते असबा माल गैर। और ये 2 औरतें हैं, सगी बहन और अल्लाती बहन। सगी बहन और अल्लाती बहन असबा माल गैर उस वक्त होती हैं जब मैयत की बेटी या पोती या परपोती नीचे तक किसी भी दर्जे में मुअन्नस औलाद हो तो सगी और अल्लाती बहन ये असबा माल गैर होती हैं। अब बाकी ज़वील फुरूज से बचा हुआ तरका ये बतौर असबा हासिल करती हैं।